अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر مرتين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس نسبت سے ابتدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بات کا آغاز ہوا تھا. آج دلائل نبوت پر چند گزارشات پیش کرنی ہے. نبی اور رسول ایک حیثیت سے ایک ہیں اور ایک حیثیت سے دونوں میں فرق ہے. اخبار الہیہ اللہ کے غیب کی خبریں اور اسرار اور اللہ کے علوم امت تک پہنچانے والی زبان کو نبی کہا جاتا ہے. اخبار الہیہ امت تک پہنچانے والا. پھر اگر دشمن قوم سے جہاد معاندین کے ساتھ قتال کے احکام بھی ان پر نازل ہوئے ہوں سرکشوں کے ساتھ اور مستقل شریعت اور کتاب دیا گیا ہو تو وہ رسول ہوا کرتا ہے. اور اگر مستقل شریعت اور کتاب اور مخالف قوم کے ساتھ معاندین کے ساتھ قتال کے احکام ان پر نازل نہ ہوئے ہوں تو ان کو نبی کہا جاتا ہے. یہ قدر فرق دونوں میں بیان کیا ہے. ہر نبی اور رسول اللہ کا معصوم بندہ ہوتا ہے. انسانوں میں ہی ہوتے ہیں لیکن پوری امت میں نبی سب سے بڑے علم اور سب سے بڑی عقل کا مالک ہوتا ہے. چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ برادری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملک کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عالم کے اعتبار سے ہو. انبیاء مختلف خاندانوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف قوموں میں اور کل عالم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا. انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم. پوری کائنات میں اعقل الناس، صرف انسان نہیں، پوری کائنات میں اعقل الناس اور پوری کائنات میں اعلم الناس اور عصمت کے حامل اور مالک ہوتے ہیں. انہیں نبی کہا جاتا ہے جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء والمرسلین آقائے مکی مدنی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعوت و ارشاد کیا، اللہ کے پیغامات بھٹکی ہوئی اللہ کے مخلوق کو پہنچایا۔ جن سعید اور پاکیزہ روحوں کی قسمت میں ایمان مقدر تھا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ جن لوگوں کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ انبیاء کے مخالف ہوئے، وہ باغی بنے۔ انبیاء نے ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کی پوری سیرت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی۔ اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کے دستور کے مطابق عرب قوم میں مکہ مکرمہ میں خاندان قریش بنو ہاشم کے اندر پیدا ہوئی۔ قوموں نے اپنے اپنے نبیوں سے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے اور دعوے کی حقانیت کے لیے اور سچائی کے لیے دلائل مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے دلیل مانگی، اللہ نے نمرود کی آنکھ کو ان کے لیے گلزار کر کے بنا دیے اور قرآن میں اس کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعوی نبوت کیا، دلیل مانگی، اللہ نے دلیل عطا فرمائی۔ مخالف قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کیا اور موافقین کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگی اور کہا، حقیقت میں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے زندہ 9 مہینے کی گابن اٹھنے نکال کر کے بتاؤ۔ اس کا بیان قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ سے زندہ گابن 9 مہینے کی اٹھنے نکال کر حضرت صالح نے بتا دی، لیکن قوم نے اس فرمائشی معجزے کو قبول نہیں کیا، یعنی اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ انبیاء سے قوموں نے جو مطالبے کی معجزات کے، دلائل کے، اس میں اللہ کی سنت یہ رہی کہ قوم کے فرمائشی معجزے پر پیغمبر کو منع کیا گیا کہ یہ فرمائشی معجزے مناسب نہیں، آپ قوم سے سمجھاؤ۔ لیکن فرمائشی معجزات کے بعد نبی کی دعا، نبی کا اصرار، قوم کے ایمان کی تمام یہ سب اسباب ہوا کرتے تھے، پھر اللہ دے دیتا تھا۔ لیکن اللہ کا یہ دستور رہا کہ فرمائشی معجزے کے بعد ایمان نہ لانے پر قدرت کا قہر فوراً آ جائے گا، اور اگر فرمائشی معجزہ نہیں، اللہ کی طرف سے معجزہ ملا ہے، چاہے ایمان لے آئیں چاہے ایمان نہ لے آئیں، فوری طور پر اللہ کے عذاب کا آنا ضروری نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ دائر کیا، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کیا۔ اللہ نے دلیل عطا فرمائی، لوہے کو حضرت داؤد کے لیے موم کر دیا۔ یہ حضرت داؤد کے ہاتھ لوکھن کا نرم اور ملائم اور موم ہو جانا، یہ اللہ کی قدرت کی علامت نبوت پر دلیل تھی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جناتوں کا ان کا مسخر کر دینا، ہواؤں کا ان کا تابع ہو جانا، تانبے کا چشمہ ان کے ہاتھ پر بہا دینا، یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج بیماریوں میں مبتلا مخلوقات کو ہاتھ پھیر کر ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اس کا بیان قرآن میں۔ لا علاج، مایوس العلاج مریضوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے تھے، مردہ قبر سے باہر نکال دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ فضاؤں میں اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا، اس کا بیان قرآن میں۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے اپنی نبوت کی اس بات پر کوئی نہ کوئی دلیل لایا،
لیکن معجزہ یہ مقصد نبوت نہیں رہا، نبوت پر علامت تھی۔ معجزات دلائل نبوت ضرور ہوا کرتے ہیں، مقصد نبوت نہیں۔ اسی دستور کے مطابق امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات دیے گئے۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی اور ان معجزات کو گننا شروع کیا۔ مستقل کتابیں اللہ کے پیغمبر کے معجزات پر لکھی گئی۔ یہاں چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کو معجزات دیے گئے، سب سے بڑا معجزہ اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور انبیاء جو معجزات دیے گئے، دعوی نبوت پر جو دلیل پیش کر گئے، وہ نبی کے زمانے تک رہا، اور وہ نبی کے زمانے کے بعد، یعنی اس نبی کی دنیا سے اللہ کی ملاقات کر لینے کے بعد وہ معجزے کا اثر ختم ہو گیا۔ آج حضرت داؤد کا لوہے کو موم کر دینے والا معجزہ باقی نہیں، آج حضرت سلیمان کا تانبے کو پگھلا دینے والا معجزہ باقی نہیں، آج حضرت ابراہیم کا نمرود کے آگ گلزار ہو جانا یہ معجزہ باقی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام داہنا ہاتھ بائیں بغل کے نیچے سے نکال کر لوگوں کے سامنے کرتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا ہو جاتا تھا، لاٹھی زمین پر ڈال دیتے تھے تو کبھی اجگر بن جاتا تھا، کبھی ناگ بن جاتا تھا، اور کبھی دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا تھا۔ قرآن نے اس کو 3 طرح کے سانپ بیان کیے ہیں۔ کبھی وہ ثعبان بن جاتا تھا، یعنی بہت بڑا اژدہا، اور اتنا بڑا اجگر بن جاتا تھا کہ ایک جبڑا فرعون کے محل کے اوپر اور ایک جبڑا فرعون کے محل کے نیچے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان تمام انبیاء سابقین کے معجزات ان کے زمانے تک باقی رہے، اور ان کے زمانے ختم ہونے پر وہ نبی اپنا کام پورا کر کے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ معجزات کی تاثیر اوجھل ہو گئی۔ لیکن قربان جائیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک، وہ پاکیزہ روحیں اور وہ نفوس قدسیہ، امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ حضرات صحابہ کرام کا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے۔ پھر ان صحابہ سے ان کے ہاتھ وہ معجزے سے معجزے کی تاثیر بھی پیدا ہوئی۔ یہ انبیاء سابقین کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی کہ اپنے امتی کے ہاتھ اس معجزے سے معجزاتی تاثیر پیدا ہو، یہ صرف اس نبی کے امتیوں کی خصوصیت رہی۔ اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو آج تک باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ سب سے بڑا معجزہ آقا کا کون سا؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے جب آپ کی عمر شریف 40 سال 6 مہینے کی ہوئی، غار حرا کی خلوتوں میں سب سے پہلے آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی طرف سے معجزہ نہ دیا گیا ہو۔ مجھے بھی اسی دستور کے مطابق اللہ کی طرف سے میری نبوت کی دلیل پر، دعوے پر دلیل کے طور پر اللہ نے وحی عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت میں قرآن کو وحی سے تعبیر کیا، اللہ کی وحی اتری۔ اب مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس معجزے پر بھی مقابلہ ہوا، اس معجزے کو بھی جھٹلایا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ آقا امی یہ محض ہے،
आका का कोई उस्ताद नहीं, आका ने कभी किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, आप उम्मी हैं। अरब की कौम भी अनपढ़ थी, उम्मियों में एक रसूल उम्मी पैदा हुआ। इसके बावजूद भी जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, इनाद, दुश्मनी, तोड़, अदावत, आका पर इल्जाम लगाया। अब कुरान में कई मकामात पर वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। देखो, अगर कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ कलाम या शेर यानी शायरी या कहानत की तरफ तुम मंसूब करते हो तो इस जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। कहीं कुरान ने कहा 10 सूरतें बनाकर ले आओ, कहीं कुरान ने कहा 10 आयतें बनाकर ले आओ, कहीं कुरान ने फरमाया एक आयत उस जैसी बना करके पेश कर दो। आखिर तक मक्का के मुशरिक इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके। ऐलान नबूवत के वक्त से लेकर 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में आका को हर रोज हर तुलू होने वाला सूरज कोई न कोई डिमांड लेकर के आता था, कोई न कोई चैलेंज का मुकाबला करना पड़ता था। जब कुरान उतरता था मक्का की मुशरिकों की तरफ से चैलेंज, मक्का के मुशरिकों की तरफ से अजीब अजीब किस्म के डिमांड होते थे। आपने कुरान पेश किया, इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इसकी फसाहत और बलागत भी महफूज। ऐसा फसीह और ऐसा बलीग कलाम इससे पहले दुनिया में कभी भी जाहिर नहीं हुआ। कलाम की काफिया बंदी कुरान में जो है वो किसी किताब में नहीं। तो इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इससे इत्तेहाद और इस्तिंबात अहकाम भी महफूज, बल्कि पूरी किताब के हर हर्फ की, इसके लबो लहजे की अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। अल्फाज कुरान हाफिज के सीने में महफूज करवा दी, मानी अलमा के सीने में महफूज करवा दी, इत्तेहाद और इस्तिंबात अहकाम फक़हा के कुलूब में महफूज करवा दिए, इसके असरार, इसके रुमूज, इसकी हिकम हज़रात मुफस्सिरीन के कुलूब के अंदर महफूज करवा दी गई। कुरान करीम का इल्म इतना अजीब समंदर है कि जिसके निकात की हिफाजत करने वाले अलग किस्म के लोग, उम्मत के औकाला कुरान के निकात की हिफाजत करते हैं। कुरान की फसाहत कलाम की हिफाजत करने वाले के लिए बुलागा और उदबा पैदा किए और उसके लबो लहजे की हिफाजत करने वाले हज़रात कुर्राए कुरान पैदा हुए, जिसके हर हर्फ की पैगंबर की तिलावत के सादिर होने के वक्त अदा क्या थी वो अदा तक उम्मत में महफूज रही और सुबह कयामत तक महफूज रहेगी। तो सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम है। जिन 4 दीवारियों में ये कुरान पढ़ाया जाता है आज भी चैलेंज है। आज भी हिंदुस्तान में हर तुलू होने वाला सूरज इन मदारिस के विरोध में कोई न कोई फरमान लेकर के तुलू होता है और ये कयामत तक सिलसिला रहेगा। 1444 साल आका की हिजरत के हो गए और उस पर 13 साल और यानी 1460 साल का जमाना हो चुका। आज से 1460 बरस पहले मक्का की धरती में जिन मुशरिकीन मक्का ने कुरान की मुकाबला आराई की थी, हिंदुस्तान की धरती पर भी कुरान की मुकाबला आराई हो रही है। जवाब क्या होगा? अहद नबूवत में पैगंबर ने जिस तर्ज अमल से मुआनिदीन, मुखालिफीन और दुश्मन ताकतों को ज़हर किया, इसी तर्ज और तरीके से और पैगंबर के उसवे से मदारिस की मदद की जाएगी, मदारिस की हिफाजत की जाएगी और मदारिस को दुनिया में आम किया जाएगा। अभी अभी
मौजूदा हुकूमत की एक काजल हिंदुस्तानी ने मदारिस इस्लामिया अरबिया के बाबत जो जुबान दराजी की है और मसाजिद के बाबत वो इंतहाई खतरनाक है। मुसलमान कौम हालात हाजिरा को पढ़े और इसका बगौर मुताला करे। ये कितनी निवेदनबाजियां करते हैं, ये कितने बड़े मजमों के अंदर हमको ललकारते हैं। इसके जवाब उलमा की एक मुस्तकिल जमात अपने हिसाब से तैयार करती है। कोई अमलन, कोई कौलन, कोई फैलन काम में लगी हुई ये उम्मत। ये न समझा जाए कि मुजाहरा करने वाले काम कर रहे हैं। सबसे मुअस्सिर काम करने वाली वो जमात है जो मुसलमान मोहल्लात में, मुस्लिम समाज में घर घर जाकर इनको समझा करके कोशिश की जाती है कि भाई अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आगाह करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपनी लड़कियों को भी, अपने लड़कों को भी। वक्त का सबसे बड़े चैलेंज का जवाब यह है कि दुश्मन दाना बीना है, होशियार है, समझदार है। इसने इंतहाई खतरनाक जहरीला कदम उठाया है। मदारिस के सिलसिले में, मसाजिद के सिलसिले में यह मुसलमानों को दस्तक दे रहा है। कई मुसलमानों की जमात अब ये फर्ज ऐन का दर्जा हो गया है कि अपनी औलाद को दीनी तालीम के लिए खास करके फारिग किया जाए और उस पर मेहनत की जाए। सबसे बड़ा मौजिज़ा आका का कुरान करीम है। दूसरा बड़ा मौजिज़ा देखो, ये कयामत तक बाकी रहेगा। जब तक इसके अल्फाज बाकी है सहीफों में, यानी कुरान की शक्ल में, सीनों में, तब तक कयामत कायम नहीं होगी। लाख हुकूमतें बदल जाए, बदलती रहेगी। जालिम कितने ही दंदनाते हुए चंगेज खान जैसे भी दुनिया में आ गए, हलाकू खान जैसे भी दुनिया में आ गए, तातार के मजालिम भी दुनिया ने बर्दाश्त किए, भयानक से भयानक बुख्त नस्र के मजालिम भी दुनिया ने देखे। लेकिन कुरान जू का तू बाकी है और जू का तू कयामत तक बाकी रहेगा। यह आजीजन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन, हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। अब अल्लाह कैसे हिफाजत करेंगे? मासूम बच्चे दीनी मदरसों के हवाले हो जाए और इनके सीने में हिफ्ज़ कुरान के जरिए से यह अल्लाह के आलाए कार बनेंगे। हिफ्ज़ के बाद इसके मानी और मतालिब को हिफाजत करने वाले उलमा पैदा होंगे। इससे इत्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम वाले हज़रात मुज्तहिदीन और फुक़हा पैदा होंगे। इसके लबो लहजे की हिफाजत करने वाले कुर्राए कुरान पैदा होंगे और यह सिलसिला कयामत तक चलेगा। आटे में नमक की मिकदार ताइफाए मंसूरा कयामत तक बाकी रहेगी। दूसरा बड़ा मौजिज़ा, अन्ना अहल मक्का तसाअलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम इंशिकाकल कमर फअराहुम इंशिकाकल कमर मर्रतैन। ध्यान से सुनो, मक्का वालों ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसीबतों के पहाड़ तोड़े। जब भी इंसान दुनिया में काम के मैदान में चलता है तो हालात नागुज़ीर चीज है। चाहे आप दावत ले लो, चाहे आप मदरसा ले लो, चाहे आप खानका ले लो, चाहे आप समाज ले लो, चाहे आप सियासत ले लो, जब तक काम नहीं करोगे उम्मत में तो कोई आपका हासिद, कोई आपसे बुग़्ज़ रखने वाला, कोई आप पर टीका करने वाला नहीं पैदा होगा। और जब आप काम करेंगे अपने ही लोग आप पर टीका करेंगे, इसकी क्या जरूरत, और आपकी बुराई करेंगे। आका ने जब काम शुरू किया, मक्का वालों ने कुरान पर चैलेंज मारे तो कुरान ने चैलेंज का जवाब दिया। एक मर्तबा मक्का वाले हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں آپ اگر اللہ کے نبی ہیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، ہم تو نہیں مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس راوی یہ حدیث ہے، 10 سال پیغمبر کے گھر میں رہے ہیں، 94 برس کی عمر ہوئی ہے، صحابہ میں سب سے بڑی عمر پا کر کے وفات پانے والوں میں ایک انس بھی گھر کا آدمی تھا، اور مکثرین فی الاحادیث النبویہ میں کا بھی ایک ہے، بڑا اونچا درجہ انس کا ہے۔ مکہ والے آئے اور کہا آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں تو جنا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ قرآن میں اس معجزے کا بیان ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ بڑے عجیب انداز سے قرآن نے بیان کیا، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اگر یہ مکہ والے اللہ کے پیغمبر کے دعوی نبوت کی حقانیت پر، یہ مکہ والے حقیقت میں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اس کی سچائی پر، وَإِن يَرَوْا آيَةً، کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو یوں ہی کہیں گے کہ یہ تو من گھڑت پہلوں کا جادو ہے جو نقل ہوتے ہوئے چلا آیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ مکہ والوں نے سوال کیا، ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ اب عقل انسان کی فیصلہ کرتی ہے کہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے سے مکہ والوں کا کیا بھلا ہو جائے گا۔ چلو انہوں نے ہی تو یہ کہا تھا، لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى۔ مکہ والوں نے یہ بھی سوال کیا تھا، اے نبی جی جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں، جو قرآن آپ لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہٹانے کا کام ہو جائے، یا جو ہمارے باپ دادا قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو کھڑے کرو اور ہم ان سے باتیں کریں۔ عجیب عجیب سوالات پیغمبر کی خدمت میں ہوئے ہیں۔ لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض، یہاں سے ملک کے شام جانے میں لمبی مسافت ہے، ٹائم بہت جاتا ہے، تیرے قرآن سے پھونک مار دے اور ہم سیدھے شام پہنچ جائیں، اور وہاں سے پھونک مار دے اور سیدھے ہم مکہ پہنچ جائیں۔ یہ ذہنیت جو آج ہے مکہ والوں کی تھی، یہ چیلنج تھا، اس طرح کا یہ چیلنج۔ اب عقل کیا کہتی ہے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو بھی گئے تو اس میں مکہ والوں کا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن انہوں نے مانگا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، نبی انک حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی کی صفت یہ ہے امت کی ایمان کا لالچی ہوتا ہے، حریص کہ یہ امت ایمان لے آئے اور یہ امت جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد کی جو ممتا ہوتی ہے اس سے 99 درجہ زیادہ نبی امت کے ساتھ رحیم اور شفیق ہوا کرتا ہے۔ اب یوں آقا نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پورا مکہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، لیکن جو موجود تھے، جنہوں نے مطالبہ کیا اور جو موجود تھے، انہوں نے کیا بکواس شروع کیا، اوہو محمد کا جادو اب تک تو زمین پر چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ یہ مکہ والوں نے کہا کہ اب تک تو محمد کا جادو زمین پر چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ تو دوسرے سمجھدار بھی ہوتے ہیں باولوں میں، تو ان باولوں میں جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بے وقوفو، جادو ایک پر ہوتا ہے، سب پر تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر جادو کوئی کسی پر کرے تو ایک پر کرے، سب پر تھوڑا ہوتا ہے، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ یہ ضد، یہ حد درمی، یہی حال موجودہ ہندوستان میں حکومت کا ہے۔ ایک طرف 100 کروڑ ہے اور ایک طرف 30 کروڑ ہے، ان 30 کروڑ سے 100 کروڑ کو خطرہ ہے۔ یہ بات کوئی عقل میں آنے والی؟
हुकूमत, फौज, ताकत, असलहा सब इनके पास, और 30 करोड़ निहत्ते हैं, बेसरो सामान है, न फौज है, न हथियार है, न ताकत है, न एटमी ताकत, कोई ताकत नहीं। फिर भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अकल भी तो माने, ये ज़हनियत मक्का के मुशरिकों के थी, और आज शिर्क के नाम पर पुजारी जितने भी हैं उनकी ज़हनियत ये है, और ये ज़हनियत क़यामत तक रहेगी। मैं आपको असल मजमून जो समझाना चाहता हूं वो मजमून आप समझते चलिए। अकलमंदों से चैलेंज हर जमाने में रहे, लेकिन अकलमंदों ने चैलेंज का जवाब अजीब अंदाज से दिया। ये तो किस्सा कहां हुआ था? मक्के में। लेकिन माजिदाए शक्कुल कमर तकमीला फतहुल मुल्हिम मुस्लिम की शरह है, तारीख फिरस्ता में अइम्माए सीर और तारीख ने लिखा है 3री सदी हिजरी के शुरू में सहाबाई किराम की एक जमात तबलीगी इस्लाम के लिए हिंदुस्तान आई। इस पर मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। 3री सदी हिजरी के शुरू में 200 साल के बाद सहाबा की एक जमात हिंदुस्तान आई, मालाबार पहुंची थी। गदन कलूर एक शहर का नाम है। यहां का राजा सामरी बहुत हुस्न अखलाक और मेहमान नवाजी में मशहूर था। जब सहाबा की 3री सदी हिजरी के आगाज पर यह जमात मालाबार के गदन कलूर पहुंची तो राजा सामरी को इत्तला हुई। राजा सामरी के दरबार के अंदर हाजिर हुई। सहाबा ने देखा कि अखलाक इसके बहुत अच्छे हैं और आदमी बात सुनता है, खुश अखलाक भी है और समझदार भी है। तो खुश अखलाक और समझदारों को बात समझानी चाहिए। ये हजरात पहुंचे, हजरात साहबाए किराम की जमात। इस्लाम के बाबत राजा ने तारुफ मांगा। राजा सामरी ने इस्लाम के बाबत तारुफ मांगा। इस मुकद्दस जमात में अल्लाह की तौहीद, पैगंबर की रिसालत की हक्कानियत की बात चल रही थी, और दौराने गुफ्तगू ये बात चली कि हमारा नबी वो है कि उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके बताए। अब जमात के अमीर को पता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये असर रूनुमा हुआ है। वो अपनी अरब की धरती पर होने वाली कारगुजारी हिंदुस्तान में बयान कर रहे हैं। राजा चौंक गया। अकलमंद था, ऊंचे कैरेक्टर का मालिक था, समझदार था। उसने देखा कि इतना मुहय्यरुल उकूल वाकया जब रूए जमीन पर रूनुमा हुआ हो तो दुनिया में वो दिन सबत होगा, वो तारीख लिखी हुई होगी। तो उसने अपने लोगों से कहा बात बंद करा करके कि जरा रोज नामचे निकालो, यानी दैनिक और वीकली और मासिक पेपर निकालो। उस जमाने में भी यह सिलसिला था। आज लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत जल्दी तेज है, कुछ भी तेज नहीं है। कितने दिन निकल जाते हैं, व्हाट्सएप खुलता ही नहीं है, और जहां किसी भी महकमे में चले जाओ तो वहां लाइन मिलती ही नहीं। उस जमाने में इससे तेज तर्रार लोग थे। जब रोज नाम से निकाले तो एक पेपर में निकल गया कि ओहो, आज तो एक अजीब धरती पर करिश्मा हुआ कि चांद के 2 टुकड़े हुए। जब राजा ने वो पेपर के अंदर लिखा हुआ पढ़ लिया तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3री सदी हिजरी के शुरू में सबसे पहले मालाबार का राजा सामरी मुसलमान हुआ था। गोया के 3री सदी हिजरी के आगाज पर सहाबा की मुकम्मल जमात का यहां आना और तबलीग इस्लाम करना और पैगंबर के दलाइल नबूवत से बात समझा दी, और उस वक्त इस्लाम कबूल किया था। रहती दुनिया तक कुरान ही के जरिए से और अल्लाह के पैगंबर की मौजिज़ाती तासीर ही के जरिए से इस्लाम का बका रहेगा। न टेक्नोलॉजी के जरिए से, न किसी भी दुनिया की जदीद तहजीब और तरक्की के जरिए से, किसी भी पद्धति से नहीं। एक ही पद्धति बाकी रहेगी, वो पद्धति कुरान की है।
दो दलीलें हो गई। तीसरी दलील, हज़रमौत एक जगह का नाम है, वहां के रुआसा, इनमें अशआस इब्न कैस भी था, जिसको आज बहरीन कहते हैं। इसका सरदार अशआस इब्न कैस हाजिर हुआ था और 40 आदमी बड़े बड़े रुआसा बात को समझने के लिए आए थे। जब किसी चीज का एकदम उभारा हो जाता है तो लोग इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। अभी हिंदुस्तान के मौजूदा हालत को लोग समझने की भी कोशिश करते हैं कि इस कदर मुसलमानों से दुश्मनी क्यों, इस कदर इस्लाम से दुश्मनी क्यों। और अब तो तेज तर्रार टाइम ये हो गया कि घरों पर बुलडोजर, मस्जिदों पर बुलडोजर, मदरसों पर बुलडोजर। इंसानी तारीख जब से रूनुमा हुई है तब से लेकर आज तक चंगेज खान भी ऐसा नहीं कर सका। आप पढ़ो जरा, इस्लाम हिस्ट्री पढ़ो, तातार भी ऐसा नहीं कर सके। एक टाइम था हाइड्रोजन बम निकला, एक टाइम था एटम बम निकले। यूक्रेन और रसिया कब से लड़ रहा है और हर एक डरा रहा है, और पड़ोस के मुल्क से डरते हैं कि इनके पास ये चीजें एटमी ताकत में ये बहुत हैं और इनमें नॉलेज नहीं है। ये जानवर किस्म के लोग हैं और अनाड़ी किस्म के लोग। जब इतनी बड़ी एक जहरीली ताकत इनके हाथ में आ गई तो कब किस पर बरसा दे कोई ठिकाना नहीं। समझो बात को, ये माजिजात की बात मैं इसलिए लाया हूं। हज़रमौत के रुआसा अशआस इब्न कैस समेत आए और कहा, आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, एक बात हम अपने जी में छुपाते हैं, वो क्या है आप इसको बयान कर दो तो हम मान ले कि आप अल्लाह के नबी हैं। कैसी वाहियात बात है। आप यूं कह रहे कि मौलवी साहब मेरे दिल में क्या है जरा आप बोलो, ये कैसी वाहियात बात है। ऐसा भी पैगंबर से सवाल हुआ, जैसे मक्का वालों ने पैगंबर से सवाल किया थे, नबी है तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जैसे आपने सुना। अब ये सवाल हुआ, हमारे दिल में क्या है वो जरा बता दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो कहानत और कहानत का पैसा दोनों मुजीब जहन्नम है। यानी जोशीपना और जोशीपने को धंधा बनाना, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। वो जोशी भी जहन्नमी है, मन अता फना काफिनन फकत कफर बिमा जा बिल मुस्तफा। ये धंधा भी जहन्नमी है और धंधा करने वाला भी जहन्नमी है। मैं ऐसा नहीं हूं, तो कैसे माने कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो आका ने अपनी कंकर हाथ में ली और कंकर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये खोला तो वो तमाम रुआसा अशआस इब्न कैस के समेत सब कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक रिवायत में यूं भी कि खुलफाए राशिदीन के हाथ में भी कंकर ने तस्बीह पड़ी, सब इस्लाम ले आए। चौथी दलील, एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी, एक नौ मुस्लिम, अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, इस्लाम का तारुफ था। कहा हम कैसे माने कि आप अल्लाह के नबी हैं। आका ने फरमाया तुम क्या चाहते हो। तो कहा वो दरख्त की डाल को अपने पास बुलाकर बता दो, ये पैगंबर के साथ हुआ है। हिंदुस्तान में जो हो रहा है ना अभी, ये हुआ है पैगंबर के साथ। आका ने फरमाया, उस दरख्त को इशारा किया, हुक्म दिया, झाड़ पर से एक डाली उतरी और चली और पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जा चली जा, वापस जाकर के चिपक गई। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दूसरा वाकया, एक देहाती बद्दू इस्लाम लाया, कहा मैं मुसलमान हूं लेकिन कोई ऐसा करिश्मा बता दो, इसलिए कि आमतौर पर लोग चमत्कार को परस्तार होते हैं, या चमत्कार दिखा वहां पूजा शुरू। ऐसा नहीं है इस्लाम में, हर चमत्कार परस्ताश नहीं होता है। लेकिन इन्होंने ये मांगा अल्लाह के नबी से, मैं इस्लाम तो लाया हूं लेकिन आपकी हक्कानियत पर कोई दलील बता दो। क्या चाहता है क्या तू कि वो दरख्त को बुला लो। अजीब वाकया बयान किया है। आका ने हुक्म दिया, इसको कहा जा उस दरख्त से कह कि अल्लाह के नबी का ताबेदार हो जाओ।
अल्लाह का पैगंबर तुझे बुलाता है तो ताबेदार हो जा। वो चला देहाती और दरख्त को पैगाम दिया। रिवायत में है हाँ ओमो, ये दरख्त जैसे इंसान आलस मरता है, दरख्त ने आलस मरी, इधर की जड़ें खत्म हुई, इधर की जड़ें खत्म हुई और चल करके दरबार नबूवत में हाजिर हुआ। वो देहाती साथ में है और उसके साथ साथ दरख्त चल करके आ रहा है। अब वो कहता है हस्बी हस्बी, ए नबी बस करो बस करो बस करो। आका ने फरमाया जा अपनी जगह पर वापस चला जा। वो दरख्त चला और अपनी जगह पर वापस चिपक गया। ये अल्लाह के पैगंबर का मौजिज़ाती तासीर। तीसरा वाकया दरख्त का सुन लीजिए। एक मर्तबा सफर था जिहाद का, तशरीफ ला रहे थे वापस, दूर दूर तक कोई दरख्त या आड़ नहीं थी और पैगंबर को कज़ाए हाजत हुई। हाजत पूरी करनी थी, खुले में नहीं कर सकता। इंसान हया और शर्म का पैकर है। इंसान में खुदा ने ये चीज रखी है। जब आदम से जन्नत का लिबास उतारा तो आदम नंगे हो गए, हव्वा सामने खड़ी है, फरिश्तों का माहौल है। फतफ़क़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत का दरख्त का पत्ता लिया और चिपका दिया सतर की जगह पर। इसीलिए इंसानों में हया है। और आज बेहयाई जो हो रही है वो इंसान नहीं है, इंसानों की सूरत में जानवर है जो बेहया है। इसलिए कि बाप आदम की फितरत में तो हया थी। आका को आड़ की जरूरत थी कजाए हाजत के लिए। किसी सहाबी से नहीं कहा, दूर मैदान के किनारे एक दरख्त था। आका तशरीफ ले गए और कहा अल्लाह के हुक्म पर मेरा ताबे हो जाओ। वो दरख्त चल कर आया। इधर मैदान के किनारे पर एक दरख्त नजर आया। आका ने फरमाया अल्लाह के हुक्म पर मेरा ताबे हो जाओ। दोनों दरख्त अपनी जगह से आए और दोनों दरख्त ने आड़ किया, पर्दा किया और आका ने हाजत की। आका हाजत से फारिग हुई। जब अल्लाह के नबी सफरों में होते थे, जमीन का तरतीब यह है, जमीन खुरद ली जाती है, खतना किया जाता है, कज़ाए हाजत की जाती है और उस पर मट्टी डाल दी जाती है। ये इस्लाम का पाकीज़ा तरीका है। हवा के रुख की तरफ पेशाब नहीं की जाती है, उसके एक नियम और आदाब है। फिर जब आप फारिग हो गए, दोनों दरख्त को इशारा कर दिया, दोनों दरख्त अपनी जगह वापस चले गए। ये तो आका के जमाने में आका की बातें हैं। जुमे का दिन था, मस्जिद नबवी में खजूर का एक झाड़ था। पहले पूरी मस्जिद नबवी कच्ची थी, खजूर के पत्तों की छत थी और खजूर के दरख्त के ये पापड़ी पीढ़िए की जगह पर जो है पीढ़िए हुआ करते थे। कच्ची मस्जिद थी, एक खजूर का तना था। अल्लाह के पैगंबर उस पर दस्ते मुबारक रखकर जुमा के दिन खुतबा देते थे, जैसे हम असा पर खुतबा देते हैं। आका खजूर के दरख्त पर टेक लगा करके खुतबा देते थे। अब मस्जिद नबी बनी, साहबा ने कहा कि हम आपके लिए मिंबर बना दे। आका ने इजाजत दे दी। पहले 3 सीढ़ियों वाला था, अभी 13 सीढ़ियों वाला है। इजाजत हो गई। पहले जी जुमा थी, आका ने उस पर दस्ते मुबारक नहीं रखा, अब मिंबर बन चुका। जब आका का हाथ मुबारक उस पर नहीं गया तो वो रोया, जैसे ऊंट मादा अपने दूध पीते बच्चे की जुदाई पर बिलकती है, बिलक बिलक करके रोने लगा। और उसके रोने की आवाज से पूरी मस्जिद नबवी में आओ बुका पैदा हो गया। आका ने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा, वो खामोश हो गया। रिवायत में है अगर पैगंबर दस्ते शफकत उस पर न रखता, कसम खुदा ताला की, कयामत तक ये दरख्त रोता रहता। आका ने उससे पूछा तू क्या चाहता है? क्या तू ये नहीं चाहता कि इससे बेहतर जगह यानी जन्नत में जहां ऐश व इशरत है और तुझे वहां लगा दूं जहां की जमीन यहां की जमीन से कीमती है और तुझसे फल आते रहे और रहमान ताला के बंदे उससे खाएं और तेरे साये से लुत्फ अंदोज हो, यानी मैं तुझे जन्नत में बो दूं, इसको तू पसंद करता है? रिवायत में है उसने कहा हाँ हाँ अल्लाह के नबी मैं पसंद करता हूं। अगर तू ये पसंद न करे तो बदस्तूर तुझे इसी तरह रहने दे। वहां मस्जिद नबवी में 7 सुतून है, इनको उस्तवानाए सबआ कहा जाता है। एक पर लिखा है उस्तवानतुल वुफूद,
ایک پر لکھا ہے استوانا حنان، ایک پر لکھا ہے استوانا عائشہ، ایک پر لکھا ہے استوانۃ الوفود، ایک پر لکھا ہے استوانۃ التہجد، ایک پر لکھا ہے استوانا السر۔ یہ 7 ستون ہے، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جانا اور حضرت عیسیٰ کا مردی کو زندہ کر دینا، اس کے مقابلے میں پیغمبر کا یہ معجزہ بڑا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کے دست مبارک سے ہوا۔ ایک صحابیہ خاتون ہے ام اوس بغزیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ تھی، عورت ذات۔ گھروں میں گھی بنتا تھا جیسے آج بھی بنتا ہے، ملائی سے گھی بنایا۔ کچھ دن تھوڑا 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 کر کے گھی جب جمع ہوا تو ایک برتن میں لے کر ام اوس آقا کی خدمت میں پہنچی اور کہ اللہ کے نبی یہ میرا گھر کا گھی ہے، میں نے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام اوس بغزیہ کا وہ گھی قبول کر لیا۔ پیغمبر کی عادت شریفہ یہ تھی، ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ رد کر دیتے تھے۔ دونوں مونڈوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ 3 علامت نبوت تھی جس پر سلمان حلقہ بگو سے اسلام ہوا تھا فارسی۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ پیغمبر ہدیہ قبول کرتا ہے، صدقہ رد کر دیتا ہے۔ دونوں مونڈوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ قبول کر لیا، آپ نے ضرورت کے مطابق لیا، پھر آپ نے اس میں برکت کی دعا دے کر کے ام اوس کو واپس کر دیا۔ جب ام اوس کو وہ گھی واپس کیا تو پوری برنی بھری ہوئی تھی۔ ام اوس بغزیہ صحابیہ ہے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو میرے گھی اس ہدیے سے کوئی تکلیف ہوئی کیا؟ نبی تو کبھی ہدیہ رد نہیں کرتا ہے، اور نبی نے میرا ہدیہ کیوں رد کر دیا؟ ایک بے چینی ہو گئی، ایک پریشانی ہو گئی۔ جب اللہ والے کسی کا ہدیہ قبول نہ کرے تو دینے والا فکر میں پڑتا ہے کہ میرے مال میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو اللہ والا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ والا اگر قبول کر لے تو ایک لقمہ حرام 40 دن کی مقبول عبادتیں گئی، ایک حرام کا لقمہ چلا گیا تو 40 دن کے مقبول عبادتیں گئی۔ ام اوس بغزیہ صحابیہ فکر ہوئی کہ ہائی میرا ہدیہ کیوں قبول نہیں ہوا؟ فوراً دربار نبوت میں ڈری ڈری حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی معافی چاہتی ہوں، میرے ہدیے سے آپ کو تکلیف ہوئی یا میرے مال میں کوئی کسی قسم کی آمیزش تکلیف کیا ہے، ذرا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام اوس فکر نہ کر، میں نے اس سے لیا، دیکھ یہ میں استعمال کرتا ہوں، اب تو نے مجھے ہدیہ دیا تو پیغمبر کی عادت شریفہ یہ ہے ہدیہ لو بھی نہ ہدیہ دو بھی تو محبت رہے گی۔ ہمیشہ لیتے رہنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، دینا بھی چاہیے۔ جو ہمیشہ لیتا رہتا ہے وہ کوئی مہانبھا اچھا آدمی نہیں ہے، جو کوئی دے تو اس کو دینا بھی چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے لیتے ہیں لیکن دینے کا لسٹ میں نام بام نہیں آتا۔ ہاں دیں گے کب نیانی کو؟ وہ بھی چوپڑی میں لکھ کر کے دیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، چوپڑی میں لکھا کبھی نہیں جاتا ہے، جس کو دیا ہے وہ تو بھول جانے کا ہوتا ہے۔ پہلے ویوہار چلتا تھا، ویوہار کھانا کھانے کے بعد کھاٹلا لگتا تھا، 100 روپیہ ویوہار۔ یا قرضہ وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کس نے کہا تھا دعوت کرنے کا؟ اسلام کا ضابطہ اور نیتی اور نیم یہ ہے جب تم نے خوشی سے کھانا کھلایا ہے تو کھلا دو، بھول جاؤ۔ پھر ویوہار اسلام میں نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ تو قرض کے معاملے پر لیتی دیتی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو ام اوس بغزیہ کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے قبول کیا ہے، اب واپس برکت کی دعا دے کر کے واپس کیا، اس کو استعمال کرتی رہے۔ اب ایک چھوٹی سی بلنی میں گھی تھا اور پیغمبر کی دعا کی برکت تھی، اللہ کے نبی دنیا سے رحلت کر گئے، وہ گھی اتنا ہی باقی تھا، روزانہ استعمال کرتی تھی۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन बने, वो घी बाकी था। 2.5 साल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर की वफात हुई, वो बरनी में घी इतना ही है। सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, 10 बरस तक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। उम्मे औस बाजियां इस्तेमाल कर रही है, खूब हदिया भी कर रही है, तकसीब भी हो रहा है, घी खत्म होने का नाम नहीं लेता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकुम मुहर्रमुल हराम को शहीद हो गए, मस्जिद नबी के मिंबर में। हजरत उस्मान इब्न अफ्फान खलीफतुल मुस्लिमीन हुए। 6 साल तक इत्मीनान का दौर रहा था। फिर हजरत उस्मान के दौर में उम्मे औस बहजिया का विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था, और इस वक्त तक उम्मे औस के घर में वो घी बाकी था। अल्लाह के पैगंबर की लाई हुई शरीयत और ये दीन और अल्लाह के पैगंबर का कुरान दुनिया में बाकी है, और दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती है। तुम चाहे जितने भी बुलडोजर चला दो, लेकिन इस्लाम हर घर में, हर फर्द में और हर बच्चे के सीने में कुरान उतार करके रहेंगे, और कुरान उतरेगा इनके सीने में। ये कोई 4 दीवारी हमारे लिए फर्ज का दर्जा नहीं रखती है। हम तो कैंपों में भी काम करते हैं, अरे कैंपों की भी जरूरत नहीं है। बिलाल ने अपने सीने के ऊपर पत्थर की भारी चट्टान को बर्दाश्त करके सांकड़ों में बांधा हुआ है, और नीचे इंतहाई खतरनाक काला चिकना पत्थर है, लेकिन बिलाल के इस्तकामत को उसने आस नहीं आने दी थी। तो ये तो बिलाल की औलाद है, ये अम्मार की औलाद है, ये खब्बाब की औलाद है, ये सुहैब की औलाद है, ये सुमैया की औलाद है, ये जन्नीरा की औलाद है। अरे बुलडोजर से डराने वालों, तुम्हारी काया खत्म हो जाएगी और तुम एक दिन ख्वाब गफलत बन जाओगे, और इस देश की तुम एक दिन की नफरत की फैलाई हुई चीजें खत्म हो जाएगी। जरूरत है इस बात की कि पैगंबर की शरीयत से मोहब्बत की जाए, अजमत दिल में बिठाए जाए। अभी इतने बड़े मजमे से पूछे, आज कौन कितना कुरान पढ़ा है, जिल्लती के असबाब क्या है? इन लोगों ने निशाना तो बहुत खतरनाक मारा है। जो हमारी रूह है, जो हमारा कल्ब जिगर है, इस पर निशाना ताका है। मुस्लिम कौम फना हो सकती है, अगर 30 करोड़ फना हो गए, लेकिन जब तक एक माई का लाल बाकी है, अपने दीन ईमान को आंच नहीं आने देता है। और कयामत तक खुदा का ये वादा है, कयामत तक सहाबा 1 के 100 के 1 काफी थे, सहाबा 100 में 1 काफी था। और हुआ भी, बदर देख लो, अरे उहुद देख लो, अहज़ाब देख लो, मिसालें मौजूद है। 100 पर 1 काफी, फिर 10 पर 1 काफी, अब कयामत तक 2 पर 1 काफी, कयामत तक 2 पर 1 काफी। 30 करोड़ वत्ता 30 करोड़ 60 करोड़ तो अभी है, 60 करोड़ है, 30 करोड़ नहीं 60 करोड़, और 35 करोड़ हो तो 70 करोड़ हो, 70 करोड़ हो। बेअक्ली की बात करते हो। 100 करोड़ एक तरफ, 30 करोड़ एक तरफ, 100 करोड़ खतरे में, 30 करोड़ आजादी में। नहीं, बात ऐसी नहीं है। हकीकत क्या है? इस्लाम में ये तासीर है कि जितना दबाओगे इतना उभरेगा। कुरान में ये तासीर है, जितना दबाओगे इतना उभरेगा। खुशी का मौका है, डंके की चोट इस्लाम की तबलीग दुश्मनों से खुदा करा रहा है। डंके की चोट कुरान के इशान खुदा दुश्मनों से करा रहा है। डंके की चोट मसाजिद के आबादी की शक्लें खुदा दुश्मनों से करा रहा है। होश में आने का मकाम है, जोश से काम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये दलाइल नबूवत इसलिए मैंने पेश की, आका के दलाइल नबूवत मैंने इसलिए पेश की कि हम बहुत वजनी हैं, हम बहुत बाकमाल हैं, हम पहली सब के मर्द मुजाहिद हैं। हम वो हैं कि जब बदलेंगे तो कायनात बदल जाएगी। ये ताकत खुदा ने दी है। कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन से पहर में उठ करके 2 हाथ उठा लेगा, ए मालिक बंदा तो तेरा हूं, जुर्म तो तेरा किया है, ऐरे गहरे नथु खैरे का तो नहीं किया है, और ये सुलह कर लेगा और मिनटों में काया पलट जाएगी। जरूरत है तौबा इस्तगफार की, जरूरत है कुरान की तिलावत की,
जरूरत है दीनी मदरसों को भर देने की। कम से कम इतना लेवल अगर उम्मत कर ले कि 98% जो स्कूल में बच्चे हैं, कसम खुदा ताला की 97% मुसलमानों के बच्चे स्कूल में हैं, न 3% मदरसे में हैं, 3%। न अभी किसी समझदार ने कह दिया कि इन 3% को भी भरो। अरे भणाओ तो सही, वहां तो भणाते तो है। अरे मीरास का एक मसला अल्लाह की कसम गणित के बगैर थोड़ा बनता है। मुनाफिका के बदन में कैलकुलेटर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पाई का हिसाब करके दे दे। मेरे से कोई मिल लेना, 99,000 अगर 1 लाख का हिसाब करना है, 99,999 आएंगे, एक पैसा आएगा नहीं। आज तक साइंस कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं पैदा कर सके जो मेरे मीरास के मसले का एक पॉइंट का मुझे जवाब दे दे। और वो मौलवी साहब गणित के जरिए से हल करता है, लेकिन पहले गणित ऐसी थी, इसलिए सिराजी के मौलवी साहब बहुत कम मिलेंगे। आटे में नमक की मिकदार भी मिलना मुश्किल है कि जिनको ये फराइज का इल्म हो। इसीलिए नबी ने फरमाया इल्म सीखो, और खासकर फराइज का इल्म सीखो, ये आधा इल्म है। ठीक है, 97% स्कूल करते हैं और 3% मदरसे में हैं। कसम खुदा ताला की खाकर अल्लाह के मेहबर अपने नबी के मेहराब में खड़े हैं। अगर 97% मदरसे में हो गए और 3% स्कूल में हो गए, अल्लाह की कसम भारत की धरती पर इस्लाम की सल्तनत हो जाएगी। तयशुदा बात, इसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं, इसमें जर्रा बराबर कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। जो शक करे वो कुरान में शक करेगा। हाँ, सिखाते हैं, फिर भी डराया जाता है, धमकाया जा रहा है और अजीब अजीब खलपसार पैदा किए जा रहे हैं। कानून के दर्जे में है, कानून को सपोर्ट करना है, कानून के साथ चलना है, लेकिन सबसे पहले तौहीद, एक मवाहिद की आंख, एक मवाहिद की बसीरत, एक मवाहिद की कल्ब की जज्बात और उसकी धड़कनें हजारों मुशरिकों की जज्बात के मुकाबले में भारी है, और उसकी नूर ईमान लाखों मुशरिकों के मुकाबले में भारी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। दलाइल नबूवत पर बात चल रही थी, ये सीरत का एक अजीम तरीन बाब है, जिन्हें 5 दलाइल नबूवत आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुबह क़यामत तक अपने मौजिज़ाए कुरान के सदक़े में पैगंबर के क़ल्ब अतहर से सादिर होने वाली इस मुबारक ज़ात और इस मुबारक किताब के सदक़े में हमें इज्जतों से माला माल फरमाए, तरक्कियां से माला माल फरमाए, और मुल्क हिंदुस्तान में इंतहाई खतरनाक जुल्म, तशद्दुद, फाशिस्ट और इंतहाई खतरनाक जालिम हुक्मरां और उनके जुल्म तशद्दुद से एक अभी की ताज़ा कारगुजारी है। खैर, मौका नहीं मैं बयान करता, कितने हजार आलम जेलों की सलाखों में दुनिया में और भारत में सिर्फ इस वजह से बंद हैं जिनको 3 दिन में 1 मरतबा या 2 दिन में 1 मरतबा या 24 घंटे में 1 मरतबा खोला जाता है और इनको खाना दिया जाता है। बाकी रहने का भी वही, सोने का भी वही, और आराम भी वही, और पेशाब पाखाना भी यही। क्या कसूर है, क्या वजह है? वर्ल्ड के हालात आप देखो, जेलों की सलाखों के महबूसों के हालात बड़े अजीब गरीब हैं। हम बहुत अमन के साथ सुकून की फिजाओं में रह रहे हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक और ये गंगा जमनी तहजीब और ये मुल्क की एकता जब तक बाकी रहेगी, भारत हर वासी हिंदुस्तान में सुकून के सांस लेगा। और यहां नफरतों की जो इंतहाई खतरनाक, खाली 2-5% नफरतों के जो बाजार फैलाए जा रहे हैं और नफरतों की जो हवा फैलाई जा रही है, इस नफरतों की हवा को मोहब्बत और अमन में बदलने के लिए भी तबलीग इस्लाम जरूरी है और दीनी मदरसों का कयाम और इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और जो मौजूद हैं इनको मजबूत करना और इनको तरक्की के आला मीनार तक पहुंचाना और एहतियाती तदाबीर से काम लेना और कानून और कायदे से चलना हर शोबे में ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है, ये वक्त का अहम तरीन चैलेंज है। अल्लाह ताला ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल्ली शहर का मदरसा है शम्सुल उलूम,
جو بہت بڑا دارل علوم ہے، جہاں 500 طلبہ ہیں، 80 لاکھ کا سالانہ خرچہ ہے، نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ، اللہ، صدقہ، خیرات کے ذریعے سے تعاون فرماتے ہیں۔